Today's session is actually very critical for someone who wants to understand asset financing. Somebody who is actually looking at how big is the stress asset market in India. I'm very delighted today that I'm joined by a very seasoned leader in this space. I'm joined by MD of one of the leading financial service institute in India, someone who has a presence pan India. Anything related to banking or finance, they're the people to go. I welcome Mr. Jyoti Prakash Kadia. Sir, welcome on the podcast. Thank you Thank for you giving so us much, time. Salesh bhai. Thank you, sir. So, sir, straight away jumping into it. When does actually an asset is categorized as a stress asset? Asset actually becomes stress. Let me put it in two perspective. It can be from the corporate borrower perspective who has taken the loan, and maybe from an institutional perspective which has given the loan. There are two different ideas when the asset will become stress. Let me discuss more from the lender perspective, which Yeah. is from the regulatory perspective when the asset will become stress. The asset will become stress when there is any sort of default which is occurring in terms of whatever the commitments that you have made to the lender in terms of interest payment or the installment payment. If you have done those type of defaults, or there is a probability of default also, then also institution can take some sort of a precautionary measure. But whenever there is actually default which is happening in terms of whenever you are not giving the interest and the installment in time, then actually the default happens. But then there are lot many defaults which are also there where the bank can take कि sir ये मेरा एक default हो गया, like you have not submitted the stock statement on time, whatever the terms and condition which has been mentioned in this sanction letter, if you have not even complied with those sanction letter terms and condition, then also it will be considered as a technical default. So there is one default which is called a financial default. There is another default which is called a technical default. Technical default can be of three varieties: that you have not submitted the stock statements or whatever the commitments of the documents that you have not submitted in time, you have not fulfilled all the criteria of terms and condition. Thirdly, whatever the interest and installment, although you might be paying it on time, but the credit submission, आपके पास उतना पैसा आ नहीं रहा है आपके अकाउंट में, like आपके अकाउंट में चाहे कहीं से भी आपके पास सेल्स से आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं आया, लेकिन आपने बैंक को इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में किसी और तरीके से आपने यदि पैसा दे भी दिया, देन ऑल्सो इट इज टर्म्ड एज ए टेक्निकल डिफॉल्ट इन द आईज ऑफ द रेगुलेटर. That is interesting. So you mean to say आपके पास अगर पैसा अवेलेबल नहीं है और आपने सेम पैसा घुमाया तब भी आप टेक्निकली पैसा यदि आपने घुमाया भी है, यदि आपने उसी बैंक से, यदि या तो पहले आप पैसा कहीं से लेके आइए, उस बैंक अकाउंट में पहले आपका जो क्रेडिट डेबिट सबमिशन, मतलब आपको जितना बैंक को पैसा देना, यदि आपको 100 रुपये यदि बैंक को देना है और 100 ही रुपये यदि आप बैंक के अकाउंट में यदि 90 रुपये आए, खाली 100 ही आए, तो 100 आया और 100 ही गया. इट मीन्स आपके पास और कोई चीज हुई नहीं ना. आपने सैलरी कैसे दी, आपने आपने अपने जो भी खर्चे एक्सपेंसेस का कैसे मीटअप किए, वो सब तो कुछ हुआ नहीं. तो इसका मतलब आपके पास में उतने ही पैसे आए जितना पैसा आपने बैंक और इंस्टॉलमेंट देना था, या उससे कम पैसे आए, देन ऑल्सो इट इज टर्म्ड एज ए टेक्निकल डिफॉल्ट इन द आईज ऑफ द लेंडर्स. That is very interesting. दैट्स व्हाट इट इज देयर. How big is actually the stress market in India, if I may know? स्ट्रेस एसेट मार्केट की यदि बात करें, तो यदि हम एनपीए की बात करें कि क्रॉस एनपीए कितना होगा, तो लगभग आज के दिन में रिपोर्टेड एनपीए लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का एनपीए का बाजार है अभी आज के दिन में. और देर आर सम एनपीएस और सम स्ट्रेस, और देर इज सम जो बैंकों ने ऑलरेडी राइट ऑफ करके, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैलेंस शीट से पूरा ही राइट ऑफ कर दिया. उनके पास जो पैसे आने थे, जो भी आना था, उन्होंने पूरा राइट ऑफ कर दिया. यदि आप सारा क्यूमुलेटिवली यदि सब कुछ देख ले, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लगभग 25 लाख करोड़ का ऐसा एक हिडन हमारे अंदर एक एसेट है, जो कि एक एनपीए एसेट है. और एक चीज़ और बताओ, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो रोज कुछ ना कुछ तो कूड़ा इकट्ठा होता ही है. तो लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का नया क्रेडिट का मार्केट है. देयर इज अ 200 लाख करोड़ विच इज अ न्यू क्रेडिट मार्केट. तो यदि हम 3% के भी एनपीए की बात करें या 1.5% का भी यदि क्रॉस एनपीए की बात करें, जो अच्छी इकोनॉमी अच्छी से चल रही है, मतलब हर साल 3 लाख करोड़ का एनपीए एसेट माने ऐड हो जाता है. तो यदि 10 लाख करोड़ का एनपीए का मार्केट है, 2-3 लाख करोड़ हर साल और उसमें एडिशन आ जाती है सर. That is amazing. एडिशन आ जाती है. और बैंक वाले लोग लगभग 1 लाख करोड़ से लेके 1.25 लाख करोड़ के आसपास की हर साल वो लोग रिकवरी करते हैं इसी एसेट से, जो उनके बॉटम लाइन में ऐड हो जाता है.
और उसमें से कितना ऐसा है कि जो राइट ऑफ कर देते हैं? राइट ऑफ जब उनको ये लगता है कि सर हमने पूरी चेष्टा कर ली, सब कुछ भी कर लिया और कुछ संभव ही नहीं है, तो फिर वो लोग 100% जब राइट ऑफ कर देते हैं, उसको 100% राइट ऑफ ही मान लेते हैं। तो एज पर दी रेगुलेटर एक बार यदि जब एनपीए हो जाता है तो यदि आपको हर साल 1/3 करके राइट ऑफ करना पड़ता है, तो 3 साल के बाद में आप एक बार उसको रेगुलेटरी की तरफ से राइट ऑफ कर लेते हो। और लगभग बैंक के अंदर जो भी बैंक ने इंटरनल गाइडलाइन बना रखी है, 8 या 10 साल के बाद में ऑल्दो 100% आपने प्रोविजन कर दिया, विच इज एक होता है आपने प्रोविजन किया कि आपने लोन अमाउंट का प्रोविजन कर लिया, तो देर आर डिफरेंट प्रोविजनिंग नॉर्म्स विच आर देयर। मैं बोल रहा हूँ कि ये कभी फिर भी 3 साल के अंदर में आप 100% आपको मिनिमम आपने प्रोविजन तो कर लिया जिसमें आपने राइट ऑफ लेकिन राइट ऑफ और 100% आपने प्रोविजन करना और 100% राइट ऑफ करना। राइट ऑफ हो सकता है कि आप 8-10 साल बाद में आपने पूरा का पूरा आपने रिकवरी से ही हटा दिया कि आपको पता है कि इसमें कुछ आने जाना नहीं है, कुछ आएगा तो देन वी विल सी इट ऑफ। तो प्रोविजन आप 3 साल के अंदर कर देते हो और राइट ऑफ आप 7 या 8 साल के अंदर पूरा कर देते हो। Interesting. What are the actually different ways of handling a stress debt? फ्रॉम ए रेगुलेटर ने अभी आज के दिन में बहुत सारे, जब आप कोई स्ट्रेस एसेट आ जाता तो एक बैंक के पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो क्लाइंट के साथ में या बोरोवर के साथ में रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कुछ फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। एक उन्होंने गाइडलाइंस बना रखी है, उस गाइडलाइंस के तहत आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। जब आपको लगता है कि रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करना चाहते, आप आईबीसी ले जा सकते हो, आप सरफेसी कर सकते हो, आप क्लाइंट के साथ में ओटीएस कर सकते हो, आप उस एसेट को किसी को एआरसी सेल कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट वेज आपके पास में उस एसेट से आप एज ए लेंडर आप देखते हो कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं जहां से मेरे को मैक्सिमम रिकवरी मिल सकती है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कौन सा रास्ता चूज करने से मेरे को सबसे जल्दी रिकवरी होगी और मैक्सिमम रिकवरी होगी, आई एम गोइंग टू वॉक दैट रोड एक्चुअली। And in your experience, what are the top 3 routes कि ऐसे asset deals को restructure करा जाए या उनसे recovery करी जाए? मेरे को लगता है कि जब लेंडर के पास में जब कोई भी एसेट आता है तो पहले तो मेरे को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग बोरोवर है, जिसने ऑलरेडी जो एसेट, जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है, if we can find a solution through him itself, that is always the better option because उसको asset ज़्यादा अच्छे से पता है and plus he is more emotionally attached to that asset also. So वो जितने अच्छे से उस asset को recover करके ठीक कराने की चेष्टा करेगा, आई थिंक सो दैट्स द फर्स्ट वे अप्रोच कि आप उसी के साथ में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करने का ट्राई करिए, उसी के साथ में ओटीएस कराइए, उसी के साथ ही चेंज इन मैनेजमेंट किसी और नए प्रमोटर को या नई कंपनी को लेके आइए, उसके साथ में कोई जॉइंट वेंचर का करा के कुछ और किसी तरीके से काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है, मोर फंड, एक्स्ट्रा फंड इज रिक्वायर्ड। तो बैंकर ने एक टर्म्स निकाल रखा है कि गुड मनी आफ्टर बैड मनी। गुड मनी मतलब वो, उनको ये लगता है कि एक बार अकाउंट तो खराब हो गया है तो मैं और पैसा नहीं दूंगा उसको रिवाइव करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो इस दुविधा में फंस जाता है कि उसको और कहीं से, बिकॉज सिंस उसका एक अकाउंट खराब हो गया तो उसका जो सिविल रिकॉर्ड खराब हो गया तो ही कैन नॉट बोरो फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर के लिए डिलेमा क्या है कि सपोज इफ द अकाउंट हैज बिकम एनपीए फॉर 100 रुपीज ऑल्सो एंड ही रिक्वायर 5 रुपीज ऑल्सो टू मेक इट किक स्टार्टेड और मेक इट रिवाइव अगेन, टू गेट दैट एक्स्ट्रा 5 रुपीज एग्जिस्टिंग लेंडर उसको 5 रुपए वो देता नहीं है और वो बाजार से वो 5 रुपए रेज नहीं कर सकता है। तो ये जो 5 रुपए जो भी प्रमोटर को जो लेके आना होता है वो प्रमोटर लेके आ नहीं पाता है। तो वो बैंकर को ये लगता है कि मैं एग्जिस्टिंग प्रमोटर को कैसे कंपनी, बिकॉज बैंकर बोलता है एग्जिस्टिंग प्रमोटर की तू मेरे को रिवाइव कैसे करेगा, इसका प्लान दो। जब वो प्लान देता है और वो 5 रुपए जब उसको इन्वेस्ट करना होता है एक्स्ट्रा रुपए कंपनी को रिवाइव करने के लिए, जब वो 5 रुपए लेके नहीं आ पाता तो बैंकर को लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर से कोई रिवाइवल स्कीम एप्लीकेबल नहीं हो पाती। इफ यू कैन फाइंड दिस सॉल्यूशन टू दैट, आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। और अदरवाइज फिर बैंकर को ये देखना चाहिए कि सर कि कितनी अधिक कंपनी यदि गोइंग कंसर्न में है और मैं यदि गोइंग कंसर्न में यदि बैंक यदि कंपनी को बेच सकता है तो दैट इज वेयर द बैंकर विल गेट द हाईएस्ट रिकवरी। और so that becomes win-win situation for that's become the win-win situation for the new borrower or the new person who is coming and acquiring the asset, and also the banker also, because पुराने प्रमोटर के साथ तो हमने देख लिया कि उसके साथ रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पा रही है। व्हेन दैट फेल्स, दैट टाइम इफ इट इज ए गोइंग कंसर्न बेसिस के अंदर यदि हम कंपनी को बेच सकते हैं देन आईबीसी इज द बेस्ट रूट। और कंपनी को या बैंकर को ये लगता है, बैंकर को जब ये लगता है कि इसके अंदर कोई गोइंग कंसर्न या बिजनेस तो इसके अंदर है नहीं, मुझे खाली एसेट ही बेचना है, देन सरफेसी इज द बेस्ट रूट फॉर दैट।
We notice almost all stress firms miss out early warning signs. What should actually promoters do not to miss these kind of early signs? फ्रॉम ए कंपनी पर्सपेक्टिव दी टॉप नॉच स्ट्रेस का जो सिग्नल आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल से आता है कि मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल मीन्स दैट आई हैव इन्वेस्टेड मनी इनटू द रॉ मटेरियल ऑफ ए कंपनी। मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल खरीद के मैं उसको प्रोसेसिंग करता हूँ, प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाया, मैंने माल बेचा, डेटर से पैसे रियलाइज़ करके पैसे लेके आया। ये साइकिल जो है ये पहले जब गुड टाइम्स में यदि ये 50 दिन की साइकिल थी या 45 दिन की साइकिल थी, यदि ये साइकिल धीरे धीरे करके बढ़ रही है, यदि मेरा जो कैश कन्वर्सन साइकिल जिसको बोलते हैं वो स्लो हो गया, यदि वो लंबा हो गया, लंबा हो गया मीन्स यदि पहले वो 40 दिन के अंदर यदि मैंने आज यदि मैंने पैसा लगाया, वो घूम के कितने दिन में पैसा वापस आया, वो यदि 40 दिन का जो साइकिल है वो यदि घूम के यदि 50 दिन हो रहा है, 70 दिन हो रहा है, इट मीन्स स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज समथिंग विच इज़ क्रीपिंग इनटू इट। दिस इज़ द फर्स्ट साइन। सेकेंडली क्या होता है कि द टाइप ऑफ माई कस्टमर्स कि पहले मैं डबल ए रेटेड कस्टमर को डील करता था, पहले मैं अच्छी कंपनीज़ को डील करता था, अब मैं अच्छी कंपनीज़ की बजाय माई क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स माई क्वालिटी ऑफ द कस्टमर इज़ स्लाइटली गेटिंग डिग्रेडेड स्लोली, then that's the another red flag sign which is there. So second is the quality of the customer. Quality of the customer. Third, what you can talk about, it is the creditors or the terms of the payment. पहले क्रेडिटर यदि मेरे को 60 दिन का भी मेरे को यदि उधारी दे देते थे एंड मेरे से इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते थे, नाउ क्रेडिटर्स विल कम एंड आस्क मी कि सर मेरे को तो इमीडिएट पैसा दीजिए तब मैं आपको माल दूंगा, या क्रेडिटर आपसे एलसी मांगने लगता है। तो यह मार्केट के अंदर में बिकॉज क्रेडिटर आपको भांप लेता है कि आप ठीक नहीं कर रहे होंगे या आपके अंदर कुछ हवा पानी आपकी ख़राब चल रही है, तो क्रेडिटर उसी तरीके से आपको डील करता है। तो जब वो क्रेडिटर आके जब आपको ये कहता है कि सर कि मैं आपको माल तो दे दूंगा लेकिन मेरे को पेमेंट अब जल्दी चाहिए या कोई चीज़ के लिए, तो वो मेरे को लगता है कि एक छोटा सा कंसर्न टाइम है। चौथा, आपका टैलेंट आपको छोड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टैलेंट आपको रिक्रूटमेंट में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, टैलेंट जो एग्जिस्टिंग मैन पावर आप रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो एक मेरे को लगता है कि एक ये साइन होनी चाहिए। लास्टली बहुत तरह की हम लोग के ना स्टैट्यूटरी पेमेंट होती है, जैसे पीएफ की पेमेंट होती है, टीडीएस की पेमेंट होती है, हमको लगता है कि हम तो एक ही दिन बाद में पेमेंट दे रहे हैं। आप रिटर्न या कंप्लाइंसेस या टैक्सेशन, आर वी डिफ़ॉल्टिंग और आर वी डिलेइंग ऑन दैट, और पहले मैं जैसे जिस हिसाब से कंप्लाइंसेस या टैक्सेशन जमा कराता था, आर वी डूइंग द सेम वे और नॉट। Awesome. So I think the first is your debtor cycles are slow. डेटा साइकिल या फिर आपका पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल देख लीजिए, आपके क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स देख लीजिए, आपकी जो क्रेडिट साइकिल वाली टाइमिंग आप देख लीजिए, वो किस तरीके से आपको डील कर रहे हैं, आपका टैलेंट आपके पास में रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी जो कंप्लाइंसेस या आपकी जो टैक्सेशन पेमेंट है वो आप कितना टाइमली दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। Very well put, sir. Very well put. So now we talked about more on stress. Is there any kind of funding model still available for these stress assets? मेरे को लगता है कि एक वो अरिजीत सिंह का कोई एक गाना है कि हर किसी के लिए ना कुछ बनाई है कोई चीज़ के लिए तो मेरे को लगता है कि बाजार के अंदर में अब जब पैसे लेने के लिए जाओगे तो आपके लिए कोई ना कोई लेंडर तैयार है ही। पहले बात, आप वहाँ तक पहुँच पाते हो कि नहीं पहुँच पाते हो, उसकी हर आदमी के लिए आप जिस स्टेज ऑफ क्रेडिट लाइफ साइकिल में हैं, आपके पास कितनी सिक्योरिटी है, आप कितने प्रिपेयर्डनेस है, क्या आपके पास कैश फ्लो है, क्या आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड है, देखते हुए आपको लेंडर आपको पैसा देगा। लेकिन वो लेंडर हो सकता है कि आपको 25% के इंटरेस्ट में पैसा दे, हो सकता है कि आपको लगेगा कि 25% में पैसा लेके तो वापस से आपको पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन आपको लगता है कि पैसा मेरे को ब्याज कैसे चुकाऊंगा, आपको लगता है कि मेरे को 10% में पैसा मिलेगा तो मैं ये पैसा रिवाइव कर सकता हूँ। लेकिन आपकी जो स्थिति है वो देखते हुए जो लेंडर है वो 10% वाला लेंडर तो आपको पैसे दे नहीं रहा, लेकिन 25% वाला आपको लेंडर आपको पैसा देने के लिए तैयार है, बिकॉज वो हायर रिस्क के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क दैट इज देयर, तो वो जो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर पार्टी है, वो जो उसको लेके आपको लगता है कि आप उस पैसे को लेके आप बिजनेस को रिवाइव करके उस पैसे से चुका के आप उस 25% वाले को पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो आपको इवैल्यूएट करने की बात है। बट देर सवेर यदि आपके बिजनेस के अंदर में यदि थोड़ी सी भी ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड इस साइन इज देयर कि आप लोग यदि आप कन्विंस कर पाते हो लेंडर को कि यदि आप पैसा दे दो तो मैं टर्न अराउंड कर दूंगा और मैं आपके पैसे चुका पाऊंगा, मतलब मैं तो दो ही चीज़ बोलता हूँ फंड रेजिंग के लिए,
एक तो नियत और एक कैपेबिलिटी। यदि आपने अपनी नियत कैसे साफ करोगे, बिकॉज आपने तो पुराना ही डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो नियत ट्रस्ट कैसे लेके आओगे? तो आप जाके बोलते हो कि भाई मैं आपको ना 200 रुपये की सिक्योरिटी दे रहा हूँ, ये मेरा घर रख ले, मेरी फैक्ट्री रख ले, और आपको तो सिर्फ 50 रुपये देने हैं, तो आपके पास तो 4 गुना सिक्योरिटी है। या फिर आप किसी की गारंटी लेके आओगे, कुछ करोगे, तो फिर आप कैसे उस ट्रस्ट को जनरेट करोगे? पहले आपको ये चीज़ देखना है। और कैपेबिलिटी, क्या पैसा चुकाओगे कैसे, कि सर वो पैसा जो लेके हाउ विल यू कन्विंस द अदर लेंडर, चाहे वो 25% में भी दे रहा है, लेकिन उसको ये चीज़ देखना है कि सर यदि ये नहीं चुका पाया, ये कैसे पैसा चुकाएगा, वो कितना अच्छे से आप उसको कन्विंस कर सकते हो, वो अपने ऊपर बात है सर। तो ये दो चीज़ को आप कैसे उस लेंडर को, सिंस आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, कैसे आप ट्रस्ट जनरेट करोगे और कैसे आप कैपेबिलिटी उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे सर। Great, sir. Are there actually any funding options available for a stress asset? हर एक फंड का अपना अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, इन्वेस्टमेंट थेसिस होता है। मेरा फंड कब पैसा लगाता है, मैं आपको 2-3 क्राइटेरिया है हमारे पास में, कि हम एक तो कंप्लीटेड एसेट होता है वो, लेकिन कंप्लीटेड हम इनकम्प्लीट एसेट के ऊपर में जनरली हम रिस्क नहीं लेते हैं। या तो जैसे कोई होटल बना हुआ है, तो होटल चालू होटल होगा, लेकिन होटल चालू होकर ठीक से चला नहीं पा रहा है, तब ऑपरेशनली ठीक से नहीं चल पा रहा, तब मेरा फंड जाके पैसा देगा। हम खाली ज़मीन के लिए, जिसने कभी होटल आधा बना हुआ 50% अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरा फंड उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो आवर फंड की फ़िलॉसॉफ़ी सबसे पहले ये है कि सर की कंप्लीटेड एसेट है, जिसके अंदर हमको लगता है कि हम उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं, हम उसको ऑपरेशनली चला के हम उसको बेटर करके, यदि हमको हमारे अंडर यदि वो कैपेबिलिटी लगती है, तो इंस्टेड ऑफ दैट एसेट या उस प्रमोटर से ज़्यादा हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि हम वो एसेट लेके उसको हम ऑपरेशनली टर्न अराउंड करा के हम उससे अल्फा जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सर हम उन एसेट्स के ऊपर वी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रनिंग दैट प्लेस। हम उसके अंदर में देयर कैन बी 2-3 वेज, या तो हम पूरा एक वो प्रोफेशनली मैनेज टीम लेके आते हैं, जो एसेट हमने खरीदी है वो एसेट को मेरी टीम मैनेज करती है। अभी तक हमने जितने भी एसेट में इन्वेस्टमेंट किए, जो पुरानी जो मैनेजमेंट टीम होती है जनरली वही हम रिटेन कर लेते हैं। हम खाली ऊपर के टॉप मैनेजमेंट, उसके CEO या CFO को चेंज करते हैं, और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम जो रहती है वही उसके साथ ही मिलकर हम उसको रिवाइव करने की ट्राई करते हैं। दिस इज व्हाट जनरली दैट वी हैव डन। लेकिन जो आपका जो प्रश्न था कि यदि और भी बहुत तरह के स्ट्रेस एसेट हो सकते हैं जिसको हम फंड नहीं करते, बट देयर आर मेनी फंड्स विच आर अवेलेबल, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन को भी देते हैं, जो कि सिर्फ कुछ भी NPA होगा, कुछ एसेट नहीं है उसको भी पैसा मिलता है। जैसे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, उसके अंदर कोई एसेट तो होता नहीं, लेकिन उनके अंदर आर्बिट्रेशन क्लेम्स होते हैं कि सर उसने कोई क्लेम उसको मिलना है, क्लेम फाइट करेगा तब मिलेगा, वो 3 साल बाद मिलेगा या 4 साल बाद मिलेगा, बट लोग उस आर्बिट्रेशन क्लेम के लिए भी बिड करके ले लेते हैं। सो देयर आर पर्सन जो उस एसेट को अच्छे से समझता है, जिसको लगता है कि मैं इस तरीके के एसेट को लेके मैं टर्न अराउंड करके वर्किंग करके कर सकता हूँ, वो उस फंड हाउसेस की या इन्वेस्टमेंट मैनेजर की उसकी स्पेशलिटी होती है, वो उस एसेट के ऊपर पैसा लगाता है। हमको जहाँ लगता है कि हम जिस एसेट क्लास को, जिसको हम टर्न अराउंड कर सकते हैं, हम वही पैसा हम लगाते हैं सर। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस इज। एंड सो व्हाट आर द checklist or checkpoints you look at when you're putting this fund and when you're allocating this fund? पहले बात तो हमको लगता है कि एक तो हमारे पास, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास टर्न अराउंड एबिलिटी है कि नहीं। दूसरी चीज़ हमें देखते हैं कि जो रियल स्टेट की जो वैल्यू है, कल को यदि हम टर्न अराउंड नहीं करा पाए तो एटलीस्ट हमारे पास में 3 गुना सिक्योरिटी की वैल्यू होनी चाहिए। So 3x is the सिक्योरिटी वैल्यू से टर्न अराउंड। और जो हम एक डील के अंदर में, हमें लगता है कि हम मैक्सिमम 75 से 100 करोड़ रुपया एक डील के अंदर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यदि हमको लगता है कि यदि ये मेरे इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यदि हम बहुत बड़ी डील में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते और बहुत स्मॉलर डील के अंदर में हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं आती, प्लस यदि हम 3 साल के अंदर उस एसेट से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमारा लगभग 25 से 30% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। That is what you give to your माने हमको चाहिए वो, हम इन्वेस्टर को क्या कमिट करते हैं वो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 25 से 30% दिस इज द रिटर्न दैट which so there are 3 areas. So sir, as per you said 3 parts to it. One is you look at that
कि basically is it a completed मेरे को ये देखता हूँ कि मैं कंप्लीटेड एसेट होने से मैं इसको टर्न अराउंड करके 3 साल के अंदर मैं एसेट बेच के मैं अपने पैसे 35% या 30% Return या पे। 25% रिटर्न में मैं इसको बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, और एसेट चला के मेरे को पैसे के रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मैं लगभग 75 से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं एक एसेट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। Great. What are the actually different ways of handling a stress debt? स्ट्रेस एसेट कैटेगरी के अंदर में हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ में या कोई भी इंस्टीट्यूशन के साथ में अभी हमने कोई भी ऐसा कोई अभी इनिशिएटिव हम प्लान कर रहे हैं, बट अभी ऑन द ग्राउंड नहीं आया, जिसके अंदर हम इस फंड को, जो भी हमारा जो स्ट्रेस एसेट का फंड है, वी आर ट्राइंग टू इनलार्ज द फंड फॉर द एमएसएमई कैटेगरी। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, जितने भी स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट थे, जितने भी होम बायर को उन्होंने बहुत सारे रियल स्टेट के प्रोजेक्ट थे जो स्टॉल हो गए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका उन्होंने स्वामी फंड करके उन्होंने लॉन्च किया। एंड यू विल सी दैट लॉट ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट विच हैज सीन द लाइट ऑफ द डे बिकॉज ऑफ दैट स्वामी फंड इंटरवेंशन। उन्होंने आया, वो फंड ने उस स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद में जितने भी जो होम बायर थे उनको माने लगभग 1.5-2 लाख होम बायर को अपने फ्लैट मिले। Okay. Noida is an ardent example of that, where the market has revived because of that Swami fund intervention there. तो हमें लगता है कि सर MSME के लिए भी इस तरीके का एक इनिशिएटिव होना चाहिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो उन्होंने रियल स्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए लिया है। जो ये छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन यदि ख़राब होते हैं, उनके पास में उनके कंपनियां बिक भी जाती है, उनके लिए स्ट्रेस एसेट फंड भी आ जाते हैं, कुछ भी काम हो जाता है। लेकिन छोटी कंपनीज के लिए इंडिया के अंदर में अनफॉर्चुनेटली फॉर ए बिजनेसमैन देयर इज़ नो सेकंड चांस विच इज़ गिवन टू इंडियन बिजनेसमैन सर। यदि आप स्टार्टअप को फंड दे देते हो, लेकिन कोई भी फेल्ड बिजनेसमैन, आज यदि एक कोई भी बिजनेस में यदि फेल हो जाता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आवर इको सिस्टम इज़ बिन डिज़ाइन दैट वे कि आप फेल्ड बिजनेसमैन को वापस खड़ा होने में बहुत डिफ़िकल्टी रहती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ये मुहिम होनी चाहिए, एक ये प्रयास होना चाहिए कि सर हम किस तरीके से एमएसएमई एंटरप्रेन्योर जो एक बार किसी कारणवश यदि वो गलती कर चुका है, उसको हम सेकेंड चांस ऑफ रिहैबिलिटेशन कैसे दें। ठीक है, great, sir. So, sir, at Resurgent India, let's suppose if there is a company which is going through stress asset, and if they come to you, how does Resurgent India and Mr. Jyoti would support him or would help him? खाली शैलेश भाई, थोड़ा सा एक मजाक के अंदर हम कहते हैं कि सर कोई क्लाइंट कभी भी थोड़ी सी तकलीफ़ में है तो हम कहते हैं कि सर हमारे अस्पताल में आके भर्ती हो जाइए, हम अपने आप ही आपका इलाज कर लेंगे। बिकॉज़ हम ये देखते हैं कि एक क्लाइंट ओपीडी का पेशेंट है कि आईसीयू का पेशेंट है। ओपीडी आईसीयू के पेशेंट से हम इंटरनली हम इवैल्यूएट करते हैं कि वेदर देयर इज़ ए सॉल्वेंसी क्राइसिस इन द कंपनी और वेदर देयर इज़ ए लिक्विडिटी क्राइसिस इन द कंपनी। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि कंपनी के पास यदि 100 रुपये का लोन है, ये पैसा चुका पाएगी, लेकिन यदि कंपनी ने पहले प्रॉमिस किया था कि ये 3 साल के अंदर में ये 100 रुपये देना था, कि मेरे को 3 साल के अंदर में अभी प्रेजेंट में 100 रुपये देना था। कंपनी मेरे पास आके बोल रही है, हमने कैश फ्लो देख लिया, हमने सारी कैश फ्लो प्लानिंग करके देख ली, हमें लग गया कि सर ये प्रेजेंट में आज नहीं तो नेक्स्ट 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर या डेफिनेट या कुछ टाइम फ्रेम के अंदर में कंपनी के पास में इतने वेयर विदॉल हैं कि कंपनी इतने पैसे चुका पाएगी। Okay. तो इसका मतलब कंपनी के अंदर में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, Crunch है। बिकॉज क्रंच है कि टेम्पररी देर इज ए लिक्विडिटी क्रंच। यदि इसको 2-3 साल की ये मोनाटोरियम मिल जाए या मोहलत मिल जाए या सहूलियत मिल जाए, तो वो कंपनी Perform कर वापस से लेगी। परफॉर्म कर लेगी और खड़ी हो जाएगी। तो इसको लिक्विडिटी क्राइसिस बोलते हैं। दूसरा होता है सॉल्वेंसी क्राइसिस। सॉल्वेंसी क्राइसिस क्या है कि कंपनी के अंदर में माने 100 रुपये का लोन यदि है, तो पहली बात अपन ने देखा कि कंपनी कुछ भी कर ले, 100 रुपये तो यार नहीं चुक सकते। कंपनी कुछ भी कर ले मतलब कंपनी के पास जो बिजनेस है, जो कैश फ्लो है, उसको मिला लीजिए, या कंपनी के पास जो एसेट है उसको सब बेच चीज़ों को। दीजिए। माने बिजनेस भी बेच दीजिए, एसेट भी बेच दीजिए, तभी भी कंपनी अल्टीमेटली कुछ एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर में हो सकता है कि 100 रुपये की जगह सिर्फ 65 रुपये चुका पाए या 70 रुपीज़ ही दे पाए। फिर हम कैसे प्लानिंग करते हैं, हम बैंकर को जाके कहते हैं कि सर देखिए 30 रुपये जो है वो अनसस्टेनेबल डेट है। आप 30 रुपये के चक्कर में आपको जो 70 रुपीज़ मिल रहे हैं ना, वो भी ख़राब हो जाएंगे यदि आप ज़्यादा हार्पन आउट करोगे कि 100 रुपये चाहिए, 100 ही रुपये चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि सर अभी आपको भागते ऊँट की लंगोट सही सर, अभी आपको 70 रुपीज़ जो 3 साल या 5 साल में मिल रहे हैं, पहले आप 70 रुपीज़ तो ले लो। इसकी प्लानिंग मेरे को पता है। आई एट द प्रेजेंट कैश फ्लो प्लानिंग या प्रेजेंट में आउट ऑफ 100 रुपीज़ लोन, आई एम श्योर
श्योर ऑफ कि 70 रुपीज़ तो कैसे चुकेंगे। 30 रुपये के बारे में मेरे को अभी प्लानिंग ही नहीं पता, मुझे ये नहीं पता मैं चुकाऊंगा कैसे। तो मैं 30 रुपये को बोलता हूँ अनसस्टेनेबल डेट। तो इसका मतलब लोन को मैंने 2 बकेट में डिवाइड कर दिया। अनसस्टेनेबल डेट के लिए मैं बैंक को बोलता हूँ कि सर इसका डिसीजन अपन 8 साल बाद लेंगे या 7 साल बाद लेंगे। इन द मीन टाइम ये 3 ऐसे इंसिडेंट हैं, जैसे मेरे पास कुछ आर्बिट्रेशन का क्लेम आ गया, या मेरे को गवर्नमेंट के साथ में मेरा कुछ कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, वहाँ से मेरे पास कुछ पैसे आने की उम्मीद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो पैसा आएगा कब। तो मैं क्या करता हूँ, जो अनसस्टेनेबल डेट है उसके साथ में मैं ऐसे अनसर्टेन कैश फ्लो को मैप कर देता हूँ, और मैं बैंक को बोलता हूँ कि सर इस बकेट को अलग रखते हैं और इस 70 रुपीज़ मेरा रेगुलर कैश फ्लो से मैं आपको पैसा चुका दूंगा। लेकिन ये ईजियर सेड देन डन है। बैंकर अब कैसे, ये तो हो गया कि आप बोरोवर पर्सपेक्टिव, कॉर्पोरेट बोरोवर के पर्सपेक्टिव से गए। बैंकर बोलेगा यार मेरे को 70 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, 7 साल में मिलेंगे। मेरे को लगता है कि यार ज्योति आज ही यदि मैं एसेट बेच दूं तो मैं पूरे तेरी फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ बेच दूंगा तो मेरे को 60 रुपये मिल जाएंगे यार, मैं क्यों 70 रुपये 7 साल के लिए मैं वेट करूंगा। चेक ऑन द इन्फ्लेशन, पता नहीं होता कि क्या होगा, तुम जो प्लानिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो बैंकर का सोचने का तरीका एक अलग है। बोरोवर को लगता है कि सर मैं 70 रुपीज़ को तो आपको श्योर शॉट दे रहा हूँ। अब बैंकर के पास में हो गया कि 70 रुपीज़ मेरे को बोरोवर ये कह रहा है कि मैं 5 साल में चुकाऊंगा, वीज़ आज यदि मैं एसेट बेचता हूँ तो मेरे को 50 रुपये मिलते हैं। तो मैं आज 50 रुपये में लॉक स्टॉक एंड बैरल किसी को एसेट बेच दूँ, या मैं 70 रुपीज़ में इससे ले लूँ और 30 रुपये भी हो सकता है कुछ उम्मीद जाग जाएगी कि मैं लूँगा। तो बैंकर अब इसी के अंदर में बैंकर अपने वैल्यू मैक्सिमाइजेशन देखता है, बैंकर अपना जो भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न देखता है कि मेरे को कौन से रास्ते में जाऊं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बोरोवर अब ये चीज़ कन्विंस करने की चेष्टा करता है। तो हमारा एज एन एडवाइज़र हम एक बैलेंस बनाने की चेष्टा करते हैं कि जो बोरोवर है उसका जो ऑप्शन है जो हम चाहते हैं, मतलब मान लो कि बैंक के पास में 5 ऑप्शन है, ABCD, जो मैंने आपको बताया कि बैंकर IBC लेके जा सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। बैंकर के पास मान लो 5 रास्ते हैं, 1 2 3 4 5। हमको ये लग गया कि हमको B रास्ता चूज़ करना है, क्लाइंट ने हमको B रास्ते के लिए चूज़ किया। हमको कभी भी स्ट्रेस एसेट एडवाइजरी में जब भी मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मुझे B रास्ते को बेचना नहीं है, मुझे बैंकर को ये कन्विंस करना है कि 1 3 4 एंड 5 या फिर जो रास्ता जो मैंने चूज़ किया उसके बारे में बात नहीं करनी, बाकी के रास्ते क्यों ख़राब हैं या उससे कम रियलाइजेशन कैसे होगी, मेरे को इस पे डेटा पॉइंट ज़्यादा बनाना पड़ता है, रैदर देन कि मैं चाहता हूँ कि आप इस रास्ते में चलो। मैं जिस रास्ते में चलने के लिए मैं चाहता हूँ मैं उस रास्ते पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बाकी के जो रास्ते हैं उन पे क्यों नहीं चलना, उसमें क्यों नहीं चलना चाहिए, आपको वो रिसर्च करके वो बताना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस एसेट एडवाइजरी के लिए आप क्यों कंसल्टेंट को अप्रोच करो, बिकॉज क्लाइंट को तो सिर्फ अपना ही रास्ता पता है ना कि मेरे को किस रास्ते में जाना है, लेकिन बाकी और रास्ते को कैसे रिसर्च करके, तो हाउ विल यू कन्विंस द लेंडर कि सर ये रास्ता सबसे अच्छा है। वो रास्ता बैंकर को समझ में आने दीजिए, बैंकर ही आके बोलेगा कि नहीं यार मेरे को तो ये रास्ता ठीक लग रहा है जो क्लाइंट चाहता है, बिकॉज बाकी के रास्ते में अपन ने कन्विंस किया कि सर इसमें रिकवरी कम होगी, इसमें ये झमेला है, इसमें ये लीगल कॉम्प्लिकेशन है, इसमें आप यहाँ जाके फंस जाओगे, वो काम हम करके देते हैं। Great. Thank you, sir. It has been a great, amazing session with you, and thank you for, I think, sharing the knowledge perspective and how big is this market and how we can actually look at different financing options for this. Thank you so much, Sir Sailesh Bhai, and your entire team for having me out here. Thank you for this.